Hello students, welcome back again my to class. So today we are going to discuss class 7th decimal exercise 3.2 part 2. Okay, so in the last video we will already discuss about 1 to question number 5. So in this video we will start after that. So it means we will start we are going to start question number 6. So in the question number 6 is given that the side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Find its perimeter. So first of all student, we have to consider what is a equilateral triangle. Okay, so a triangle which all sides are equal. Okay, and how many sides are in a triangle? 3 sides. Okay, let's discuss. Just look at here. If I make a triangle like this, okay, sorry. Okay, now that's enough. Okay, just consider this is A and this is a B and this is a C. Okay, here a triangle ABC, if we consider that the all sides of this triangle are equal, it means 3 sides are equal, so this triangle known as a equilateral triangle. Okay, so ये triangle क्या जाना जाएगा? एक equilateral triangle के नाम से जाना जाएगा. Now it is given that side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. So one side is 3.5 centimeter. So this side is 3.5 centimeter. So definitely this side also 3.5 centimeter, and this is also 3.5 centimeter. I am clear? Yes, definitely it is clear, because we know that the side of equilateral triangles are equal. अगर साइड सारे के सारे इक्वल हैं तो बच्चों कैसे होंगे? नॉर्मल सी बात है, इनके सारे साइड्स क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे और सभी क्या हो जाएंगे? 3.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. अब यहाँ क्या कर रहा है कि आपको इसका फाइंड करना है पेरीमीटर. क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ equilateral triangle is equal to 3 into side. 3 into side. इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू साइड. मतलब 3 इंटू साइड का मतलब क्या हो गया? देखो होता क्या है, पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर पूछे आपको क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ ऑल साइड. तो यहाँ पे क्या होते हैं? 3 साइड होती हैं. यहाँ पे क्या होती हैं? 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में, और तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं 3 इंटू साइड. तो बस बच्चों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. तो ये हो गया 3 इंटू 3.5. नाउ 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 3 3 से 9 1 10, 10.5 सेंटीमीटर. तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Okay, now jump on the next question, that is the question number 7. Okay बच्चों, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. तो व्हाट इज क्वेश्चन 7 इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है. ओके, दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फॉर्मूला वही लगना है, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होना है, बस वैल्यू में थोड़े से चेंजेस हैं. तो चलिए इसको करा दिया जाता है. तो कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें देखो क्या गिवन है. हमें गिवन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, हम इसको एल मान लेते हैं 7.1. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू कितना हो गया? 2.5. तो 7.1 हो गया हमारे पास एक वैल्यू, और एक वैल्यू हो गया 2.5. ओके, सो हियर वी हैव टू वैल्यूज which is length and breadth. Now what is the area of rectangle? So first just write here area of rectangle is equal to, this is a length into breadth, it means L into B. Now just put the value. So L is 7.1 into, and breadth is 2.5. Now just multiply. So we get the area. So 7.1 and 2.5, just multiply. So 5 ones are 5, 5 7 are 35. Now just leave one place. So 2 ones are 2,
and 2 7s are 14. So answer is 5, 5 to 7, 4 3 7 and 1. Okay, so this is answer. Your answer is that 70 75. So just to tell me it is correct? No beta, it is not correct because something is missing. What? First of all just put decimal place because यूनिट प्लेस यहाँ पे, यूनिट प्लेस यहाँ, तो यूनिट हो गया 2 यूनिट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 यूनिट प्लेस पे। और एक और चीज़ मिसिंग है, वो है आपका यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक दिस इज डन एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 विच इज डिवाइड। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या है, सिंपली हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो बच्चों, डिवाइड करना है 858.495 बाई 10 और 408,042.93 बाई 1000। तो दो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनमें 100 से 10 के मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है, और दो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए हुए हैं जिनमें किसी न किसी डिजिट से लाइक 72, 78 एंड 22 जैसे डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 858.495 डिवाइड करना है 10 से। ओके बच्चों, देखो आपको याद होगा जब मैंने डिवाइड का फंक्शन बताया था आपको कि जब भी 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो अपनी प्लेस से राइट साइड में चला जाता है। अपने प्लेस से क्या होता, सॉरी उल्टा बता दिया। जब भी डेसिमल से किसी भी नंबर, जब भी डेसिमल को 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू राइट साइड में चली आती है डिवाइड करने पे। क्या करने पे, डिवाइड करने पे। तो देखो बच्चों, अभी जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी हम इसको इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 858.495 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। अब बच्चों आपको देखना है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ बच्चों केवल एक ज़ीरो है, कितना, ओनली 1 ज़ीरो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली पूरी की पूरी वैल्यू लिख लेनी है। तो वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो आपने देखा मैंने पूरी की पूरी वैल्यू लिख ली और कहीं पे डेसिमल नहीं लगाया। डेसिमल लगाया मैंने कहीं नहीं, अब लगाऊंगा। देखो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे देखो डेसिमल कहाँ पे है, 8 और 4 के बीच में, 8 और 4 के बीच में डेसिमल था। यहाँ पे कितना बच्चों, 10 है, तो कितना है, 0 है, 1 0 है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, इस ये भी 8 और 4 के बीच में था, तो एक प्लेस इसको इस साइड ले आइए। मतलब ये साइड कौन सा हो गया आपका, लेफ़्ट साइड। तो एक प्लेस किधर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो ये पहले 8 और 4 के बीच में था, तो अब ये 5 और 8 के बीच में आ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 85.8495। क्लियर हुआ, यस। सेम क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है। देखिए इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं 4842.93 डिवाइड बाई 1000। अब बच्चों यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। तो कुछ नहीं करना, पहले जो वैल्यू है आप उसे लिख लीजिए। तो 48, 42, 93। अब देखो डेसिमल कहाँ था, डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल कहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखो तो कितने हैं, 3 हैं। तो जो डेसिमल है वो 3 प्लेस इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 प्लेस यहाँ पे आया, 2 प्लेस यहाँ आया, 3 प्लेस यहाँ आया, यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ, मतलब 4 और 8 के बीच में। तो आंसर आ गया 4.84293, इट इज़ आंसर। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनका बहुत इजी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है ऐसे डिजिट की जिनमें डेसिमल की जगह क्या हो, नंबर गिवन हो, यानी 10 की जगह क्या हो, नंबर हो, और ये जो जैसे हैं वैसे डेसिमल में है। अब चलो चेक करते हैं कि अब इनको कैसे आएंगे।
इनका सोल्यूशन कैसे होगा? चलिए, अगर वो हो रहे तो ये भी होंगे। कैसे होंगे बात करते हैं हम डिवाइड करते हैं 483.21 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 78 से डिवाइड करेंगे। चलिए, अब एक बात देखो बच्चों, ये 78 है, ये है 483। तो 78 हम इसके यूनिट डिजिट लेते हैं, तो यहाँ भी अगर इसके यूनिट डिजिट लेंगे तो 48 ही आ रहा है, जो 78 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके तीनों डिजिट ले लेंगे, यानी 483। अब हमें 78 का मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करना है कि 483 से वो अधिक ना हो। तो अगर हम इसको 5 टाइम ले जाएं, चेक कर रहे हैं, अगर हम इसको 5 टाइम ले जाएं, चलिए देखिए, तो 5 8 जा 40 का 0 आ जाएगा, कैरी 4, 5 7 जा 35 और 35 और 4 कितना हो जाएगा, 35 और 39। तो ये तो आ गया 319, लेकिन वो क्या है 483, तो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या करेंगे, हम इसको 6 टाइम ले जाएंगे। कितने टाइम बच्चों? हम इसको ले जाते हैं 6 टाइम। चलिए, तो अगर हम इसको 6 टाइम ले जाते हैं तो 6 8 जा 48 का आ गया यहाँ पे 8, कैरी 4, 6 7 जा 42 और 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46। अब ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 483 और 468 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हमने इसको ट्राई किया और 1 मोर टाइम और ले गए, यानी 7 टाइम ले गए, तो ये डेफिनेटली 483 से अधिक चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसी पे छोड़ देते हैं। अब चलो सब्ट्रैक्ट करो, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 में से तो 8 जाएगा नहीं। यहाँ से देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको। हम क्या करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5। क्या आएगा बच्चों? 5 आ गया। अब यहाँ बचा 7 में से 6 क्या, तो 1। अब देखो ये क्या आया, 15 आया। कितना आया? 15 आया। अब 78 से 15 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे बच्चों? डेसिमल, क्योंकि अगली डिजिट क्या है हमारा, डेसिमल का है। और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। आ गया? अच्छी बात है, आ गया। अब 78 टूज़ा ले जाते हैं, तो हमें पता है 75 टूज़ा जो होता है वो होता है 150। तो 78 टूज़ा डेफिनेटली हो जाएगा 150 से अधिक हो जाएगा। तो हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे, तो हम इसको 1 टाइम ले गए तो 78 गया। माइनस कीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा तो आएगा 4। यहाँ बच्चों देखो बच्चा कितना, 4, तो 74, तो आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सीधे 9 टाइम ले जाते हैं। कितने टाइम? 9 टाइम। देखो क्यों, क्योंकि 700 ये देखो क्या 78 है, तो 10 जा कितना होगा, 780 होगा। ठीक है, जो 741 के थोड़ा सा करीब है, इसलिए हम इसको 9 टाइम ले जाते हैं। तो 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72 का 2, कैरी 7, 9 7 जा 63, अधिक हो जा रहा है, नहीं सही है। 9 8 जा 72 का 2, कैरी 7 हो गया। ठीक, 9 7 जा 63 ऐड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक, माइनस कीजिए, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो ये आ गया 3। अभी भी देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 39। कितना आया बच्चों? 39 आ रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार डेसिमल आ जाए तो आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार अगर डेसिमल आए तो आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, केवल 1 0, और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए, क्योंकि यहाँ देखिए हम इसको 0 यहाँ लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये हो गया 390। तो अगर हम इसको 5 टाइम ले जाऊँ, कितना टाइम बच्चों? 5 टाइम। तो देखिए 5 8 जा 40 का 0, कैरी 4, 5 7 जा 35 और 35 प्लस 4 हो गया 39। तो ये कैंसिल हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 6.195। अब देखो पता कैसे चलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर आपको पता कैसे चला कि इस डिजिट से ले गए। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या था 0। तो अब मुझे बताओ 8 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो।
तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 8 2 16, लास्ट डिजिट क्या हुआ 6, 3 से करेंगे 24 आएगा, लास्ट डिजिट क्या हुआ 4, 4 से करेंगे तो 32 आएगा, लास्ट डिजिट क्या हुआ 2, लेकिन जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा और लास्ट डिजिट क्या होगा 0। तो हमें इसीलिए हमने इस डायरेक्टली इससे क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई, बहुत ईजी है। चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, जहाँ इसको डिवाइड कर रहा है 22 से, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर इतना धीरे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो नॉर्मली आप उसको आप अपने कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखो ये हो गया 142.868, डिवाइड करना है 22 से। चलो बच्चों अब देखो बच्चों डिवाइड करना है 22 से, हमें डिवाइड करना है 142 को, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको 7 टाइम ले जाएंगे। 7 टाइम क्यों ले जाएंगे, शायद अधिक हो जाएगा। देखो कैसे, अगर 20 होता तो हम इसको 7 टाइम ले जाते तो ये आता है 140, यह है 142, लेकिन यहाँ क्या है 22, तो ये अगर ये 22 है तो हम इसको 6 टाइम ले जाएंगे। कितने टाइम बच्चों 6 टाइम, तो चलो 6 टाइम ले जाओ तो देखो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 और 6 2 जा 12 1 13, तो 136 आ गया। कितना आ गया 136 आ गया। अब 136 को माइनस करोगे बच्चों तो 2 से 2 जाएगा तो 0 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखो ये तो 10 हो गया। अब अगली डिजिट आती है नीचे तो हमने चलिए कर लिया यहाँ पे 108 हो गया हमारा। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ये कि सर यहाँ तो डेसिमल था, तो अब क्या करें, तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ा दीजिए आप। हमने डेसिमल बढ़ा दिया, यहाँ से देख लीजिए अब हो गया हमारा 108। अब 108 को हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 टाइम ले जाते हैं, कितने टाइम 5 टाइम, तो देखो 5 टाइम हो जाएगा 110, अधिक हो गया तो हम क्या करें इसको 4 टाइम ले जाएंगे। चलिए 4 टाइम ले जाएंगे तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, माइनस कीजिए तो ये 0 और 10 में से 8 जाएगा तो 2, 20 आ गया। अगला आ जाएगा 6, ये हो गया 206। अब क्या करें, कितने टाइम ले जाएं, तो अगर बच्चों देखो ये क्या है 20 है, 10 जा कितना होगा 220 होगा, 220 होगा तो हम यहाँ से इसको ले जाएंगे 9 टाइम। तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 119, ठीक है। माइनस कीजिए तो यहाँ 16 से 8 जाएगा तो 8 8 16 होता है ना 8, यहाँ 9 से 9 0 और यहाँ से 1 से 1 0, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। देखो क्या होगा, यहाँ 0 है यहाँ 6 है तो 6 8 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा 0 पास जाएगा, तो 0 कहेगा भाई मैं तो खुद 0 हूँ, मैं कैसे आपको दूंगा, ये 2 के पास जाएगा तो 2 इसको देगा, ये 10 हुआ। अब 10 इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16, तो 16 से 8 गया 8, 9 में से 9 गया 0 और 1 से 1 गया 0, तो यहाँ आ गया 8। अब 8 आ गया तो अगली डिजिट क्या है 8, तो यहाँ भी 8 उतार लीजिए और हमें पता है ये जाएगा 4 टाइम में, तो आ गया 88 और ये हो गया कैंसिल। तो इसका जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया 6.494। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसके जो रिमेन क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ओके बच्चों। तो ये आपका एज अ होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी क्या करना है डिवाइड ही करना। Okay students, so now we will discuss the question number 9 which is also divide. So in this question divide something different types like just look at this question number first is a 45.45553 divided by 1.55. So last question में हमने divide कैसा देखा था, जो divide देखा था उसमें जो ये जो नंबर था वो क्या था, एक होल नंबर था। मतलब एक होल नंबर का मतलब वो पूरा नंबर था, उसमें डेसिमल नहीं था, उसमें डेसिमल क्या था नहीं था। बट यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है। तो अब इसी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो बच्चों आ जाओ। तो देखो क्या है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करता हूँ तो बच्चों ये है हमारा 45.45 एंड 53,
डिवाइड कर रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.55 से। चलो अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, हम टोटली कॉन्सेंट्रेशन किस पे करेंगे, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर कौन सा टर्म है, जो यहाँ पे नीचे है, दैट्स कॉल्ड अ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है 1.55। अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर कितने डेसिमल है। तो यहाँ डिनोमिनेटर कितने डेसिमल प्लेस पे है, 2 प्लेस पे। तो सिंपली आप अपनी आंखें बंद करो, नहीं आंखें मत बंद करना, ठीक है, आंखें खुली रखना। क्या करोगे आप, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमें उसे नॉन डेसिमल नंबर बनाना है, मतलब बिना डेसिमल के। तो इसीलिए हमने क्या किया 100 से। तो बच्चों ऊपर भी क्यों कर दिया सर आपने, इसलिए कर दिया कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो चेंज ना हो जाए। कि अगर मैं केवल नीचे ही 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रैक्शन है वो रियल फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो वैल्यू नहीं हो जाएगी। यानी अगर आपको याद होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम इसको वही बना रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4545.53 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 155। ऐसा कैसे हो गया सर, तो बच्चों मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था जहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, कि जब आप 100 से या फिर 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डेसिमल होता है वो आपके राइट साइड में चला जाता है। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, आपके राइट साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 प्लेस क्या करेगा, जंप कर जाएगा, यहाँ पे चला गया, तो ये आ गया आपका 4545.53। अब इसकी बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 1.55 था, हमने इसी को तो डेसिमल से हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ गया 155। अब सिंपली हम करेंगे 155 को मल्टीप्लाई डिवाइड इस नंबर में। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 155 डिवाइड करेंगे 45.53। चलिए तो बच्चों देखो, पहला हम यहाँ से लेते हैं 155, तो यहाँ से हम 3 डिजिट लेंगे तो 454 आ रहा है। तो अगर हम इसको 3 टाइम ले जाएं, कितने 3 टाइम, चलो 3 टाइम ले जाके देखो, तो 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 15 1 कितना हो गया 16 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 4, तो 465 आ जा रहा है, जो हमारे रिजल्ट से क्या है ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 टाइम ले जाएंगे। कितने टाइम बच्चों, 2 टाइम ले जाते हैं। चलिए इसको 2 टाइम ले जाइए, तो 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 1 11 और 2 2 ज़ा 1 और ये 3, तो 310 आया। माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, तो 144 आया। अब क्या होगा, अगला डिजिट आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 5। चलिए 1445 आया। हमारे पास कितना है 155। अब कितने टाइम ले जाए बच्चों, तो अगर देखो आप इसको 8 टाइम ले जाते हो, 8 टाइम ले जाके देखो कितना आता है। 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, ठीक है, 8 5 ज़ा 40 का 4 हो गया 44 कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 और 8 4 हो गया आपका 12, तो 1244 आ रहा है। अगर 9 टाइम जाता तो कितना आता, तो क्या हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 5 ज़ा 45, 4 49 कैरी 4, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 कितना है 13। तो आप इसको 9 टाइम ले जाओ बच्चों। कितने टाइम, 9 टाइम हम इसको ले जाएंगे। तो हम जब इसको 9 टाइम ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1395। कितना आ गया बच्चों 1395, क्योंकि ये ज़्यादा उसके नज़दीक है। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आ गया 5 से 5 0, यहाँ देखिए 14 से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे 3 से 3 0, अब ये सारा कैंसिल। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया, अभी इसके बाद जो अगला डिजिट आएगा वो आएगा 5, लेकिन जैसे ही 5 आया तो यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल आ गया। क्या आ गया, डेसिमल। तो अभी हो गया 505। तो हम इसको क्या करेंगे 4 टाइम ले जाएंगे, तो 4 टाइम इसको ले जाइए, तो 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2,
4 5 20 और 2 हो गया 22 का 2 कैरी 2, 4 1 4, 4 2 6, तो अधिक हो गया बच्चों। तो क्या करेंगे हम 3 टाइम ले जाएंगे। चलिए 3 टाइम ले जाइए, तो 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 5 15 3 45 146। सिंपली माइनस कीजिए, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, माइनस कीजिए तो 5 5 से 0 आया, अब 50 से 46 जाएगा तो 4 आएगा, अगली डिजिट क्या आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी, तो कितना हो गया 403। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको 2 टाइम ले जाइए, 2 टाइम ले जाएंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आपका 403 बचा है। अगर 2 टाइम इसको ले गए तो 5 2 10 और 15 2 13 और 31, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9 93 और एक ज़ीरो हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम ज़ीरो चाहे जितने जीरो हम लिख सकते हैं, उसके आगे उसे कोई दिक्कत तो है नहीं। कितना आ गया 930। चलो 6 से ले जाओ, किससे ले जाएंगे 6 से, तो 6 5 30 का 0 कैरी 3 और 15 6 90 और 3 93, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो जो वैल्यू आ गई बच्चों, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 29.326 और दिस इज़ योर आंसर। तो कितनी आई 29.326 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी इसको मैंने बताया है। ठीक, चलिए ओके नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट here is written that each side of a regular polygon is 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक पॉलीगॉन है जिसका जो साइड है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, और एक रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सारे साइड्स क्या हैं इसके इक्वल हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 12.5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉलीगॉन है इसका जो पेरीमीटर है वो 12.5 सेंटीमीटर है, हमें ये भी गिवन है। तो कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो ये हमें बताना है कि इस पॉलीगॉन के कितने साइड हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, तो अगर ये पॉलीगॉन है, हमें पता नहीं है कि पॉलीगॉन के कितने यहाँ पे कितने उसके साइड हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हिंट दिया है, क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी इमेज की या फिर किसी भी फिगर की जो पेरीमीटर होती है वो क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, या फिर साइड इनटू लेंथ गिवन होता है, जो लेंथ गिवन हो उसकी। तो यहाँ से बच्चों की बात हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इनटू लेंथ, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड, यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 12.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, बट हमें लेंथ पता है। लेंथ कितनी है हमारी, वो है 2.5, हम मान लेते हैं ये x है, तो 2x इंटू 2.5 इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से बच्चों अगर x की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगी 12.5 बाई 2.5। अब देखो यहाँ पे 12.5 है और नीचे क्या है 2.5, तो यहाँ पे हम बिना 10 का मल्टीपल किए इसके डेसिमल को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे रीज़न है बच्चों। देखो दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों पे ही यूनिट प्लेस पे डेसिमल है, तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 125/25। तो हम बिना आप मल्टीप्लाई किए इसको भी लिख सकते हो, तो इसको हम जनरली लिख लेते हैं x इक्वल टू 125/25। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो सिंपली इसको डिवाइड कर लो यहीं से, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5। तो जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है 5 साइड, तो यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, आंसर पॉलीगॉन हैव 5 साइड्स। तो वो जो पॉलीगॉन है, जो रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके कितने साइड है, 5 साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ओके ना बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो एक कार है जो 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने आवर में, 2.2 आवर में।
तो कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो सिंपल सी बात है, अधिक का देखे कम का पूछ रहा है, यानी मैक्स का देखे मिन का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ से बच्चों देखो, कवर डिस्टेंस इन 2.2 आवर तो 89.1 किलोमीटर है। तो कवर डिस्टेंस इन 1 आवर क्या हो जाएगा, ये 89.1, या एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज जब पूछता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 89.1 और टोटल टाइम कितना है 2.2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों देखिए यूनिट प्लेस पे डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल को रिमूव कर देंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 891 अपॉन 22। अब 891 को 22 से डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड कीजिए, 22 से डिवाइड करेंगे 891 को, तो 4 टाइम्स आएंगे, पहले ले जाएंगे हम। तो देखिए 4 टाइम ले जाइए, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 88, माइनस कीजिए करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ से 9 से 8 जाएगा तो 1, यहाँ से 1। अभी देखो क्या करेंगे, एक डेसिमल हम यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, हमने एक डेसिमल यहाँ बढ़ाया तो हमारा ज़ीरो यहाँ बढ़ गया, क्योंकि 11 22 से नहीं जाएगा। अब सिंपली 22 से 110 जाएगा कितनी टाइम में, 5 टाइम में, तो आ गया हमारा 110। तो आंसर कितना आ गया 4.5। तो यहाँ से हम सिंपली बच्चों लिख सकते हैं इसको 4.5 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा कितने में, 1 आवर में। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश होता है और यहीं पे आपका चैप्टर 3 भी फिनिश होता है। तो अब जब नए वीडियो में हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ, तो पहले आपको पता ही है जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्लास। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नए चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास में। तो अगर बच्चों आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या करिएगा, आप क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है जो आपको नहीं आया, मैं इसके लिए आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के दे दूंगा। वो वीडियो ऑफ डिमांड होगी, VOD, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। तो वो वीडियो ऑफ डिमांड होगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा जिनका कमेंट होगा, अदरवाइज़ मैं और किसी का क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसका सलूशन आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ये बाहर मत निकलिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देख के चले मजा आए कि एटलीस्ट इसको लाइक तो कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, साइन आउट।